Hello and welcome to Diya Academy. This is the sixth lecture of electromagnetic induction, chapter number 6. Correct? So in today's lecture, we will study generator, AC generator. Next chapter itself is regarding alternating current. Okay? So let us begin with the topic alternating current generator, AC generator. If some supply is alternating current है तो symbol for that will be like this. For DC it was like this. So here we were sure about the positive and negative polarities, while in this case it won't be so in AC. So now what will be the principle of such generators? AC generator is the device which produces the alternating current. Okay, so on what principle does it work? It works on the principle, or it follows the law of Faraday, Faraday's law of electromagnetic induction. What is the purpose of such generator? It is to convert mechanical energy into electrical energy. Okay, so how do we provide mechanical energy? Mechanical energy can be provided by some movement. So movement will be given to a coil. Movement, that means that might be a linear motion, that might be a circular motion, correct? So all such kind of motion will require the kind of energy that is called as mechanical energy. In certain circumstances, if such mechanical energy is provided, then the electrical energy can be obtained. Okay, so what will be the circumstance? What will be the arrangement? For that we will see the construction of generator. So here we have a magnet or a magnetic field. So I have shown two polarities of magnets, north and south pole, and in between that there is a coil. Okay, with the coil there will be slip rings, slip ring 1, this slip ring 2, and with that brushes will be there. Brushes are further connected for with the conductor, and with from that the load will be supplied. यहाँ से जो भी generate हो रहा होगा current वो लिया जाएगा. So for now suppose I am taking that it's a small generator, और यहाँ से ये लोड जो है वो लोड ले लिया एक बल्ब, बराबर. एक्चुअली इट विल बी ड्रॉन और उसका फिर सप्लाई जो है वो आगे बहुत सारी जगहों पर होगा. ये पूरा पावर प्लांट होगा. ठीक है, यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट और लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जनरेटेड. सो the coil has been kept in between. Coil is kept in a magnetic field. बराबर. So obviously magnetic field ये north to south होगा. Now suppose, let us first discuss the construction only. उसको फिर रोटेट इस डायरेक्शन में करवाना है, तो ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी हो गई. आगे ये जो कॉइल है उसके एंड्स यहाँ पर स्लिप रिंग्स S1 S2 के साथ कनेक्टेड है. S1 एंड S2 के साथ कनेक्टेड है. These are called as slip rings. Why slip rings are provided? Case of this coil is ultimately going to be rotated about this axis, right? So if that coil rotates, then what will happen? The two ends will get now curled with each other. बराबर, वो ऐसे कर्लिंग हो जाएगा उनका. So उनका कर्लिंग ना हो इसलिए वो स्लिप रिंग्स के बीच में ऐसे घूमते रहेंगे. बराबर. As soon as the coil rotates, ये भी अपने स्लिप रिंग्स के आसपास घूमते रहेंगे और कर्लिंग जो है दोनों कॉइल एंड्स का वो नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड है. स्लिप रिंग्स आर फर्दर कनेक्टेड विद द ब्रशेस. कार्बन ब्रशेस विल बी देयर. तो ये कनेक्शन एक देने का काम करेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर कंडक्टर या ऐसे कोई कंडक्टिंग मटेरियल सपोज के कनेक्ट कर लिया
देन देयर माइट बी लार्ज अमाउंट ऑफ वेयर एंड टेयर, तो कार्बन ब्रशेस है उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है एट सम स्मॉलर अमाउंट, बराबर। तो एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, इसलिए बीच में क्या लगा दिया, ब्रशेस। ब्रशेस एंड फिर ये कंडक्टर के थ्रू जो भी पावर जनरेट हुआ, वॉट एवर द एनर्जी हैज बीन जनरेटेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट विल बी ड्रॉन आउट, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन. नाउ हाउ विल इट वर्क? It works on the principle of Faraday's law, बराबर. It follows the law given by Faraday. The law is regarding electromagnetic induction. Law क्या था वो? Faraday's law. वर्किंग में लिख लेते हैं. वर्किंग क्या होगा? It works on the law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है उसके ऊपर ये काम करेगा. तो इस लॉ के अंदर क्या था कि ईएमएफ जनरेटेड, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू माइनस एन. माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द लेंज लॉ, बराबर. लेंज लॉ की प्रेजेंस शो करता है, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी, राइट. सो इफ फ्लक्स चेंजेस, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. दिस विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस. ये क्या था, कौन सा लॉ था? फैराडेज लॉ. ठीक है. अब फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो कॉइल है दैट हैज बीन केप्ट इन बिटवीन दीज टू पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा. अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे मान लो कि ऐसे ये कॉइल है एंड दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे पास हो रही है यहां से. ठीक है. सो इट इज जस्ट टचिंग एंड उसको क्रॉस नहीं कर रही है. इट इज पासिंग टेंजेंशियली टू दिस कॉइल. ठीक है. और यहां से पास हो गई. नाउ दिस कॉइल कंटिन्यूअसली रोटेट्स. ये ऐसे रोटेट होती जाएगी. तो एज सुन एज इट रोटेट्स, ये जो फील्ड लाइंस होगी, फील्ड लाइंस दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट मींस व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स. सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज गेटिंग चेंज्ड. ये यहां से फिर ऐसे हुआ, तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो थोड़ी ज्यादा पास हुई. मान लो कि ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये थोड़ी सी ऊपर से जो है वो निकल गई, फिर थोड़ी यहाँ पर ज्यादा उसके साथ लिंक हुई, फिर ऐसे आ गई, तो पूरी ही उसमें से पास हो रही है. तो ये कंटिन्यूअस रोटेशन के साथ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट इज क्रॉसिंग द एरिया और एसोसिएटेड विद द कॉइल इज चेंजिंग. तो फ्लक्स इसमें चेंज हुआ. मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होते जाता है. इफ फ्लक्स चेंजेस, ईएमएफ हैज टू गेट प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड. तो इस प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता रहेगा. तो बेसिकली वी आर गिविंग द रोटेशन टू द कॉइल. क्या दिया हमने? रोटेशन, मतलब मैकेनिकल एनर्जी. तो उसकी वजह से क्या हुआ? ईएमएफ इंड्यूस हुआ. तो हो गया मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. तो मैथमेटिकली अगर इसको देखें कि हाउ मच विल बी द ईएमएफ दैट विल बी इंड्यूस्ड, तो इसमें हम कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं. लेट अस से एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स फॉर दिस कॉइल, फॉर दिस वाइंडिंग. ये वाइंडिंग जो होगा ना, अभी हम लोगों ने क्या लिया है? जस्ट वन वाइंडिंग इज देयर. देयर माइट बी नंबर ऑफ टर्न्स. सो एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड intensity, magnetic field. Then A is the area of the coil. A is the area of the coil, and the coil is made to rotate by angular speed of omega. So omega is what? It is the angular speed, angular velocity of this coil. ठीक है. अब क्या होगा कि यहाँ पर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रहा है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ, इंस्टेड ऑफ बी वी विल राइट बी ए कॉस थीटा, राइट.
phi is what? Phi equals to flux with flux associated with the coil, and that will be equal to B dot A, that is BA cos theta. Now the magnetic field will not get changed, so we can take it out as constant from the integration. A is what? Area vector. Area vector, its magnitude is anyways going to be remain same, तो उसको भी हमने डिफरेंशिएशन में से बाहर ले लिया. The only thing that is going to be changed is cos theta by dt, right? देखो क्या चेंज हो रहा है. Suppose we have this thing as a coil, okay? So what will be the area vector for this? Area vector for this will be perpendicularly outward vector, right? अगर ये हम लोग एरिया ले रहे हैं, then this would be its area vector. Now magnetic field lines are like this, बराबर. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है N to S. Now if the coil is made rotate, बराबर, उसको रोटेट किया, यहाँ से ऐसे रोटेट करते गए, तो B एंड A के बीच में एंगल जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता हुआ दिख रहा है, बराबर. ऐसे जाएगा तो भी चेंज होगा. तो एवरी टाइम व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज? नॉट द एरिया, not the magnetic field, but the angle between area and magnetic field is going to be changed. तो अब cos theta का डिफरेंशिएशन क्या होगा? NBA sin theta. थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में करना है, so you can say that theta we have to differentiate with respect to time, and here theta is constant, so can't we take cos theta also as a constant? But here theta is what? Omega is the speed, angular speed. So omega is angular displacement theta upon time. So from this, theta equals to omega into t, right? So here we will write omega t. So differentiation of cos omega t will be sin omega t. Now with cos, only if t is there, then this differentiation would be sufficient, sin t, बराबर. फिर उसका भी आगे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज t के साथ कुछ और है, तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? ओमेगा. ठीक है, सबसे पहले हमने किसका किया? फॉर कॉस वी हैव डन, देन आफ्टर ओमेगा t का किया, तो ओमेगा t का आया ओमेगा, बराबर. बी अ -1 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा NBA ओमेगा, कॉस का माइनस साइन, एंड साइन ओमेगा t, राइट. तो इन प्लेस ऑफ NBA ओमेगा कैन वी राइट समथिंग? लेट अस से वी विल राइट एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा t, वेयर एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू NBA ओमेगा. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का. अब इसमें हम लोग अलग अलग वैल्यूज, एंगल ओमेगा इज अल्टीमेटली व्हाट? एंगल. बी और ए के बीच का एंगल थीटा जो है वो है. ठीक है, तो वो चेंज होता जा रहा है, तो हम डिफरेंट केसेस ले सकते हैं. कि सपोज केस 1 लेते हैं कि व्हेन थीटा और ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स द coil is like this and magnetic field is also like this. So area vector is outward in this direction, B is also in the same direction. So in such case what will happen? Sin theta equals to this, so epsilon equals to sin 0 equals to 0, so epsilon equals to 0. No EMF will be induced in that case, बराबर. What will be the value of flux? Phi equals to BA cos theta, बराबर. Phi equals to BA cos theta. Cos 0 is 1, so maximum flux will be linked at that time, बराबर. तब फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी BA. Then after we'll take case 2 when theta equals to 90 degree.
नाउ द कॉइल इज मेड टू रोटेट बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री हम शुरू कहीं से भी ले सकते हैं, पहले ऐसे लिया, फिर उसको ऐसे किया, फिर उसको ऐसे लिया। हम एक्चुअली पूरा रोटेशन जो है वो कंप्लीट वन रोटेशन के लिए उसको 0 से 360 डिग्री तक घुमा के वापस लाने वाले हैं। तब तक क्या क्या वेरिएशन आना है वो सब देख लेते हैं। देन द सेम साइकिल विल गेट रिपीटेड every time. The same cycle will get repeated again and again, again and again. So in case 2, theta equals to 90 degree. Sin 90 is 1. Now putting sin as 1, sin omega t as 1, we have epsilon equals to epsilon 0 and epsilon 0 is nba omega. You will get maximum value of epsilon when you take the value of sin as 1, बराबर। तब ये वैल्यू जो भी आएगी वो मैक्सिमम होगी। तो दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो जब 90 डिग्री पे होगा तब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, बी और ए के बीच का एंगल जब उतना होगा तब। What will happen to the flux? Flux equals to BA cos theta. उसके अकॉर्डिंगली cos 90 is 0, so no flux will be linked with that. फिर आएगा केस 3। अब कौन सा एंगल लेंगे इसमें? थीटा इक्वल्स टू 90, 0, फिर 90, देन 180 डिग्री। सो साइन 180 डिग्री इज अगेन 0. So sin 0, that means epsilon will be equals to 0. Epsilon 0, and what will happen to phi? Phi equals to BA cos theta cos 180. Cos 180 is -1, so phi will be minus BA. Fourth case, when theta equals to 270 डिग्री, बराबर 3/4 रोटेशन उसने कर लिया होगा। तो साइन 270 डिग्री इक्वल्स टू साइन 270 पे उसकी वैल्यू हो जाती है -1. एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू बट इन नेगेटिव डायरेक्शन. ईएमएफ इंड्यूस होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में. सी वी आर डीलिंग विथ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. तो बताया ना, जो पहले पॉजिटिव होगा वही बाद में नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, राइट? सो दिस इज हाउ we are getting EMF is sometimes NBA omega, and after the half cycle we are getting it as minus NBA omega. बराबर? मैक्सिमम वैल्यू ही आई बट नेगेटिव के अंदर. So next is flux equals to BA cos 270. There flux will be 0 and again it comes back. ठीक है, वापस आ जाता है 360 मतलब 0 वाली पोजीशन ही आ जाएगी. 0 वाली पोजीशन पे थीटा इक्वल्स टू 360. फिर एप्सिलॉन अगेन पूरा ना लिखे तो चलेगा, आप समझ पाओगे. ये एप्सिलॉन विल बी इक्वल्स टू 0 एंड phi will be equals to again BA. Okay, so this would be the scenario during entire complete one rotation of a coil, जिसमें EMF जो है वो इंड्यूस होता जाएगा. EMF कैसे होगा? 0 to maximum, then again it will drop down, again it will attain some that maximum value in the other polarity, then it will get dropped to the 0 value. तो इसको हम लोग ग्राफ के तौर पे अगर प्लॉट कर पाए तो यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन एंड फाई दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं साथ साथ में फॉर वन रोटेशन. तो 0 टाइम पे, देन पूरा रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन मतलब टाइम पीरियड जितना हो जाएगा उसके लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड जितना, t, बराबर. तो यहाँ पर ये ओमेगा t आ जाएगा. फिर हाफ साइकिल होगी तो t/2 जितना, उसकी भी हाफ मतलब 1/4 रोटेशन, दैट मीन्स t/4 जितना रोटेशन. देन 3/4 रोटेशन, तो 3t/4 जितना टाइम लगा, बराबर. ठीक है, तो व्हेन अब और इस y एक्सिस के ऊपर हम लोग एप्सिलॉन और फाई दोनों साथ में रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 पे एप्सिलॉन की कितनी वैल्यू मिल रही थी? 0.
देन फॉर t इक्वल्स t/2, मतलब ये 1/4 रोटेशन हुआ, 90 डिग्री पे गया तो पूरा रोटेशन में, अभी 90 डिग्री पे गया तो 1/4 रोटेशन, तो उसके लिए टाइम पीरियड से भी टाइम भी 1/4 लगा होगा, तो t/4 पे एप्सिलॉन इज बिकमिंग मैक्सिमम. Let us say this is the value for epsilon max, right? So the position of epsilon will be this. यहाँ पर हम लोग लिख दे this is nVA ओमेगा, और उतना ही नीचे यहाँ पर लिख दे -nVA ओमेगा, because we will require that also. अब आगे चले तो t/2 पे क्या वैल्यू आ गई? t/2 पे मतलब 180 पे, अगेन इट इज ड्रॉपिंग back to zero value. Then at 270 degree 3t/4 rotation, तो उस पे आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पर नेगेटिव में nVA ओमेगा. Then again coming back to zero. So if we join these all dots, then it will follow some path like this, बराबर. साइनसॉइडली उसको ऐसे वैल्यू जो है वो मिल रही है, ठीक है. एनीवेज एप्सिलॉन इज द फंक्शन ऑफ किसके लिए? यहाँ पर BA cos थीटा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेरीज लाइक दिस ओनली, बराबर. तो ये हमें एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसे चेंज होती हुई मिली. सेम वे में फाई के लिए भी हम देख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू BA, लेट अस से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फ्लक्स लिंक एंड दिस वुड बी द सेम वैल्यू बट इन नेगेटिव साइड. तो जब जीरो होगा, जीरो ओरिएंटेशन पे थीटा इक्वल्स टू जीरो, एट दैट टाइम इट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, देन इट इज ड्रॉपिंग बैक टू जीरो, देन इट इज टेकिंग अप द मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो इस तरफ आया, फिर यहाँ पर अगेन जीरो, बराबर, देन गेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू when the rotation gets completed. So joining these points we will get a graph like this, बराबर. cos के जैसा ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है, तो ये ग्राफ भी हो गया. और रोटेशन के हिसाब से हम लोगों ने AC जनरेटर्स जो है वो AC जनरेटर्स की पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड अलग अलग सीन पे, अलग अलग ओरिएंटेशन पे EMF की वैल्यू कितनी होगी वो हमने देख लिया, बराबर. समटाइम्स यू विल नॉट बी गिवन द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इंस्टेड ऑफ दैट यू विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो कैसे फाइंड करोगे? अगर NBA ओमेगा मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड फाइंड करना है तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2πf, और टाइम पीरियड दिया तो 2π/t लेना है. बस ये आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला हम काफी बार यूज कर चुके हैं, बराबर. फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंडिया के अंदर सारे एपरेटसेस जो हैं वो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करते हैं, बट इन सम कंट्रीज लाइक इन USA, तो USA के अंदर जो एपरेटस हैं उनको 60 हर्ट्ज पे वर्क कर सके वैसे डिजाइन किया है, क्योंकि वहां पर जनरेशन उस हिसाब से होता है, इसलिए, बराबर. तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई. अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी, दैट मैकेनिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड बाय वेरियस मीन्स. अल्टीमेटली हमें क्या करना है? उसको रोटेट करना है. रोटेट कैसे करेंगे? हाथ से ऐसे को घुमाते जाएंगे? नहीं, ऐसे तो कर नहीं सकते. तो रोटेट कौन करेगा? तो रोटेट करने के लिए उसको डैम बना के पानी के नीचे रख दिया अगर कॉइल को, तो क्या हो जाएगा? टरबाइन बन जाएगा. टरबाइन देखा होगा आप लोगों ने, बराबर. एटलीस्ट डायग्राम के अंदर तो देखा ही होगा. तो टरबाइन के ऊपर से जब हाइट में से, डैम में से पानी जाएगा, तब वो पूरा टरबाइन घूमेगा. ये पूरी अरेंजमेंट आगे कनेक्टेड होती है. तो रोटेशन का एक ये मीन हो गया. इफ दिस मीन इज यूज्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, तो जो पावर प्लांट वो होगा उसको बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, बराबर. वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. वाटर का यूज हुआ ना, उसके थ्रू मैकेनिकल एनर्जी मिली, इसलिए. अगर ये रोटेशन के लिए अगर स्टीम जो है उसको यूज किया गया और स्टीम बनाने के लिए कोल है वो बर्न किया गया, देन दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मल पावर प्लांट. अगर वही स्टीम बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया गया, देन दैट विल बी कॉल्ड एज
न्यूक्लियर पावर प्लांट, बस इतना फर्क रहता है। अदरवाइज अल्टीमेटली दिस कॉइल हैज टू गेट रोटेटेड इनसाइड सम प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो नोट दिस डाउन।